Hello and welcome, dear students. I hope you all are doing good. Okay, so I'm back with chapter 2. Title is Principles of Management of OC. Okay, so in this chapter we will learn about principles of management. Okay, in this chapter what will you learn? So in this chapter you will learn about principles of management, its meaning, its concept, its nature and its importance. Second point is thoughts of management. Okay, so here we can see four thoughts are given. Okay, first is classical thoughts, second is neoclassical thought, third is behavior related thoughts and fourth is modern thought. In this chapter, we will also learn about some management gurus. Names are given in your screen like Frederick Taylor, Henry Fayol, and Peter F. Drucker. When we talk about Henry Fayol, 14 principles are running in our mind. It is also an important question for your board exam. हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स के बारे में अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है. ओके, एक क्वेश्चन और आता है कि व्हाट इज मैनेजमेंट एंड व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट. ये दोनों मैनेजमेंट एक दूसरे से अलग है. ठीक है, अब कैसे अलग है ये हम चैप्टर में देखेंगे. ओके, in the last chapter we have learned so many definitions about management. So some of definitions I have selected and paste it in your screen. As you can see. So first is management is the process of achieving goals and objective effectively and efficiently through and with the people. मतलब मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो गोल को पूरा करने के लिए और ऑब्जेक्टिव को इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से पूरा करने के लिए लोगों द्वारा जो काम किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट. Management is a process of designing and maintaining an environment in which individuals work together in group to effectively and efficiently accomplish selected aims. मतलब मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लोगों द्वारा काम तो किया जाता है ग्रुप में, लेकिन काम कैसे, कब, कहाँ, किस तरीके से अप्लाई करना है काम को, वो हम किससे सीखते हैं, मैनेजमेंट से. ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत. जैसा मैंने आपको पहले बताया, मैनेजमेंट कुछ सिद्धांतों पे काम करता है. मैनेजमेंट एक नियम नहीं है, रूल नहीं है कि जिसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन ये प्रिंसिपल जो वर्ड इस मैनेजमेंट में ऐड किया गया है, ये एक प्रिंसिपल मैनेजमेंट को गाइड करता है, डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है, और प्रिंसिपल्स की वजह से ऑब्जेक्टिव जो है हमारे और ये टारगेट है जो हमारा, वो अचीव करने में बिजनेस यूनिट को एक बोलते हैं कि इजी हो जाता है. जो उसके स्टेप्स हैं वो कैसे हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं. सो नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ अ गाइड. किसका रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, गाइड का. फॉर द मैनेजर्स, किसके लिए, मैनेजर्स के लिए. In fact, the principles of management are not the rules. ये क्या नहीं है, rules नहीं है. It is only the sums and substance of the traditions, assumptions and experience. In business units, some rules, principles might be formed in relation to the human behavior. So, the achievement of the business becomes easy. These principles are called principles of management. What is principle of management? इसका definition 1 मार्क में पूछा जाता है, प्लीज इसे अंडरलाइन करके रखना. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड. जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रिजिड नहीं है, कि उनको बदला नहीं जा सकता है. दे कैन बी चेंज्ड इन टाइम्स व्हेन इट इज रिक्वायर्ड. Principles of management are the detailed and perfect guideline. क्या है ये, perfect guideline for decision making and its implementation. It is very important to understand the difference between principles of management and techniques of management. Principles of management और techniques of management ये दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, अलग हैं. ठीक है. Methods and techniques are a set of steps taken to achieve the target. मेथड्स और टेक्निक्स क्या है, आर अ सेट ऑफ स्टेप्स टेकन टू अचीव द टारगेट. ऐसे स्टेप्स हैं जो टारगेट को अचीव करने के लिए लिए जाते हैं. लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है,
तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द गाइडलाइंस फॉर द डिसीजन विच हैव टेकन ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टेक्निक। यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसका काम कर रहा है? यहाँ पे गाइडलाइंस देने का काम कर रहा है। ओके, नाउ नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। 5 natures are given. First is universal acceptance. Second is flexible. Third is general guidelines. Fourth is based on human behavior. And fifth is contingency. Okay? डिटेल में अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ अहमदाबाद में ही है या इंडिया में ही है या इंडिया के बिजनेस में ही है। इट कैन बी सीन, इसे हर जगह देखा जा सकता है। वेयर एवर देयर इज अ नीड ऑफ ह्यूमन कलेक्टिव एफर्ट्स, दीज प्रिंसिपल्स आर रिक्वायर्ड। Principles of management can be applied to the most of the business units. Okay. However, implementation of the principle may changes as per time, form, activity, and size of the business unit. But the principles of management can be applied to the most of business units. Okay. तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही जगह है, इसे पूरा वर्ल्ड वाइड देखा जा सकता है। और सेकंड पॉइंट इज फ्लेक्सिबल। ये रिजिड नहीं है कि एक बार बन गया तो हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज नहीं कर सकते तो ये रिजिड होता, लेकिन ये रिजिड नहीं है, ये कैसा है? फ्लेक्सिबल है। क्योंकि प्रिंसिपल्स को एज पर सिचुएशन व्हेन अ मैनेजर रिक्वायर्स देयर इज अ स्कोप फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। These principles do not seem to match in some situation. The manager is allowed to effect change. मैनेजर के पास वो परमिशन होता है कि टाइम एंड सिचुएशन के हिसाब से वो क्या करे, उसे चेंज कर सकता है। ठीक है, जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होता। नंबर 3, जनरल गाइडलाइंस। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसका काम करते हैं? गाइडलाइन देने का काम करते हैं। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस gained by different experts in different situations. At the time of managing a business unit, desperate and complex problems are arising. जब भी कोई बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, तब उन्हें गाइड करने का काम कौन करते हैं? प्रिंसिपल्स करते हैं। The principles of management could not be strictly applied for each unit, okay, but can get desired result by accepting the principles as only guidelines and by using it in favorable situation. Okay. नेक्स्ट पॉइंट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किस पे डिपेंड करते हैं या किसके बेसिस पे बने हैं? तो बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट may seem to have big effect on human behavior and principles of management has direct relationship with the human behavior. आप गाइड किसे करोगे? ह्यूमन को ही करोगे ना, मशीन को तो करोगे नहीं। उसमें तो आप जैसे बटन प्रेस करोगे उस हिसाब से काम करेगी। अब ह्यूमन में तो बटन होते नहीं है, ठीक है, तो उन्हें तो गाइड ही करना पड़ेगा। तो ये गाइड करने का काम कौन कर रहा है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कर रहा है। तो ये किस पर बेस्ड है? ह्यूमन बिहेवियर पे। ओके, सो इट इज नेसेसरी टू कंसिडर व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या इसमें जरूरी है, नेसेसरी है? तो साइकोलॉजिकल फिनोमिना। ओके, next is contingency. Contingency is one of the element to apply principles of management. Achievement of a goal can be made easier by a unit with taking required decision through uses of these principles in certain unavoidable situations, such as to pay appropriate and reasonable wages to the employees. The criteria of being fair and reasonable depends upon the concern regarding necessity and contingency of the affecting factor. Okay? जब भी contingency से हम ये समझ सकते हैं कि जब भी बिजनेस में अचानक से कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है कि कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है या गोल्स को हम ईजियर अचीव करने में कैसे उसे प्रोसेस को ईजी कैसे बना सकते हैं, तो ये सारे डिसीजंस में और कुछ ऐसे सिचुएशंस है जिनको अवॉइड करना है, तो ये सब में हमें कौन हेल्प कर रहा है? तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्यों ज़रूरी है ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट?
तो आपको स्क्रीन पे 6 पॉइंट्स आई हैव रिटन। फर्स्ट इज इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी। बिना गाइडेंस के काम करना और गाइडेंस के साथ काम करना, ये दोनों में फर्क होता है। ठीक है, तो व्हाट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, क्या इफेक्ट करता है ये, काम करने की क्षमता को क्या करता है, ये बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। सेकेंड पॉइंट इज मैक्सिमम यूजेस एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, जो भी मशीनरी अवेलेबल है, या जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, उनका मैक्सिमम यूज किस तरीके से किया जाए, ये हमें कौन सिखा रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड, हेल्पफुल फॉर साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजंस, और एक गाइड की तरह हमें किस में हेल्प कर रहा है, साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजंस में। फोर्थ, टू कॉप अप विद द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसा मैंने पहले बताया कि ये रिजिड नहीं है, ये कैसे हैं, फ्लेक्सिबल है। तो ये क्या कर रहे हैं, बिजनेस के एनवायरनमेंट चेंज होने के साथ साथ ये क्या करते हैं, उसके साथ कोप अप करते हैं। नेक्स्ट, टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बिजनेस के साथ साथ ये किस में हेल्प कर रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। नेक्स्ट, यूजफुल फॉर रिसर्च, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और ये किस में भी यूजफुल है, तो रिसर्च, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में भी। ओके, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ आवर चैप्टर, थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट, मोस्ट IMP क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ओके, हियर इफ वी टॉक अबाउट थॉट, तो टाइम के साथ साथ मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, जो डेफिनेशन है, वो टाइम जाने के साथ साथ उसमें क्या आता है, गया चेंजेस आते गए। जैसा कि हम सब जानते हैं, मैनेजमेंट आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, मैनेजमेंट एंशिएंट टाइम से आ रहा है। ठीक है, मैनेजमेंट एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। जैसे पहले जो वॉर हुआ करते थे, उसमें भी कुछ स्ट्रेटेजीज को अप्लाई किया जाता था, या जो भी बिजनेस किया जाता था उसमें आपने सुना होगा बार्टर सिस्टम एंड मैनी मोर, कि बिजनेस को कैसे चलाया जाए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो मैनेजमेंट थॉट्स आर आउटकम्स ऑफ रिसर्चेज, स्टडीज एंड रिजल्ट इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में जो अगर हम थॉट्स की बात करें, तो ये थॉट्स है क्या, तो टाइम जाने के साथ साथ इसमें स्टडीज की गई, रिसर्चेस की गई, ठीक है, और उन पर से जो भी आउटकम्स बाहर आए, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं आज, थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट। Many management gurus have represented different principles by separate opinions, और अलग अलग मैनेजमेंट गुरुज ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, किसके बारे में, थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। ओके, डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। सो हियर थॉट्स आर गिवन, 4 थॉट्स की हम बात करेंगे। थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियोरी, थॉट्स ऑफ न्यू क्लासिकल थियोरी, थॉट्स ऑफ बिहेवियर रिलेटेड एंड थॉट्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ये सारे जो थॉट्स की हमने बात की है, ये टाइम जाने के साथ साथ इनमें चेंजेस आया। जैसे पहली अगर हम थॉट की बात करें, तो थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियोरी, इसका टाइम पीरियड क्या दिया है, 19th सेंचुरी। थॉट्स ऑफ न्यू क्लासिकल थियोरी की अगर हम बात करें, तो ये किस टाइम की है, एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। फिर कौन सा कॉन्सेप्ट आया, कौन सी थॉट आई, तो थॉट्स ऑफ बिहेवियर रिलेटेड। और नेक्स्ट कौन सा आया, थॉट्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, आफ्टर 1960 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में इन थॉट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थॉट्स कौन कौन से हैं, क्लासिकल थियोरी, नॉन क्लासिकल थियोरी, बिहेवियर रिलेटेड एंड मॉडर्न मैनेजमेंट। डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।